بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ گزشتہ دنوں فون پر ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور شادی کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خاوند ان کو جاب نہیں کرنے دیتا، اس وجہ سے وہ بہن ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر آ گئی ہیں اور یہاں پر وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آئی ہیں۔ اب کیا وہ خاتون اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر اپنے والد کی مرضی کے ساتھ جاب کر سکتی ہے، اور کیا اپنے بچوں کو اپنے خاوند کی مرضی کے خلاف یہاں کسی سکول میں ایڈمیشن دلوا سکتی ہے؟ یعنی مختصراً اگر میں عرض کروں تو ان کے اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ کیونکہ خاوند کے گھر کی بجائے اپنے والدین کے گھر میں ہیں، تو اب یہاں پر وہ اپنے والد کی اطاعت کریں گی یا اپنے شوہر کی؟ جواب دینے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ مجھے اس سوال سے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے ان بہن کو بھی سمجھایا تھا اور میں اپنی دیگر بہنوں کو بھی سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان کے انداز بیان سے اس سوال کا کرنے والی عورت کے خیال کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، عورت کی مرضی کے دیکھے بغیر یا یہ دیکھے بغیر کہ متبادل صورتوں میں اس کے محسوسات کیا ہیں، فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اسلام عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا، اگرچہ چند مسلمان ضرور ایسا سوچ سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان مرد اپنی بیوی کا بہتر خیال رکھیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عورت کی مرضی اور خواہشات کی نفی کی جائے۔ اسلام عورت اور مرد کو ہر معاملے میں برابری کا درجہ دیتا ہے۔ دین اور دنیا میں دونوں پر ایک جیسے فرائض عائد ہوتے ہیں، البتہ خواتین کی جسمانی طاقت اور جذبات مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ اگر ہم اسلام کے عائد کردہ اہم فرائض دیکھیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد کی طرح عورت پر بھی فرض ہیں۔ ان کی عدم ادائیگی پر اسی طرح اس پر گرفت ہوگی، ان پر سزا اور جزا بھی اسی طرح ملے گی۔ پھر کیوں نہ زندگی کے معاملات میں بھی عورت پر برابر کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں؟ اسلام مرد کی طرح عورت کو بھی ملکیت کا حق دیتا ہے اور وراثت میں بھی حصہ دار ٹھہراتا ہے، گو کہ وراثت میں اس کا حصہ مرد کی نسبت کم ہوتا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داریاں بھی کم ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سب باتیں جانتے ہیں مگر جلد ہی بھول جاتے ہیں کہ عملی زندگی میں ان باتوں کے کیا تقاضے ہیں۔ ایک اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ہم خواتین کی اس قسم کے حقوق اور رعایتوں کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات تسلیم کر لینا چاہیے کہ خواتین چاہیں گی کہ ان پر عمل بھی ہو۔ اس کے نتیجے میں مردوں پر بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، تعلیم کو لے لیں۔ اسلام تمام مسلمانوں کو ان کی لڑکوں کی تعلیم کے سلسلے میں جس طرح حوصلہ افزائی کرتا ہے، اسی طرح انہیں اپنی لڑکیوں کو بھی تعلیم دینے کی بھرپور ترغیب دیتا ہے۔ ایک عقل مند اور عملی سوچ رکھنے والی تعلیمی انتظامیہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اس طرح مناسب تعلیم کا انتظام کرے گی کہ وہ ان کی عملی زندگی میں مفید ثابت ہوں، مگر لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے تعلیم کی اہمیت ایک ہی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلم معاشرے بلکہ پوری سرزمین میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنی تعلیم کا بہتر استعمال فرماتی تھی اور بے حد عالمانہ انداز میں مسائل پر اپنا نقطہ نظر بیان فرماتی تھیں۔ جب کبھی حضرت عائشہ
और वसी इल्म रखने वाले सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के दरमियान किसी मामले में इख्तलाफ हो जाता तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी राय के इजहार में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी मुस्लिम मुआशरे की फलाह में गहरी दिलचस्पी रखती थीं। किसी ने यह कभी नहीं सोचा कि औरत का काम तो अपने घर और खानदान की देखभाल होता है और सैयदा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इसको नजरअंदाज फरमा रही हैं। ये बाद के जमाने की सोच है जब जहालत और कम इल्मी मुआशरे में जगह पाने लगी, वरना खवातीन मुआशरे में जो किरदार अदा कर सकती हैं उसके मुताल्लिक इस्लाम बहुत आला राय रखता है। इस सवाल में जो बात मेरे लिए बाइस तशवीश है वो ये तासुर है कि खानदान ही में मुस्तकिल तौर पर एक इख्तलाफ चल रहा है कि एक मजबूर गरीब औरत किसकी अतात करे, जबकि सवाल में उस खातून की अपनी ख्वाहिशात और उसके खानदान के मखसूस हालात का जिक्र ही नहीं। मुझे ये नहीं बताया गया कि खातून के काम की नोयत क्या है, क्यों उनके शोहर उन्हें इस काम से रोकना चाहते हैं और घर पर रहने को कहते हैं। यह बताया गया है कि खातून अपने वालिद के साथ रहती है, उन्होंने उनको काम पर जाने की इजाजत दे रखी है, जबकि उनकी दोनों नन्ही बच्चियों की देखभाल एक नर्सरी में हो रही है। चलिए हम फर्ज कर लेते हैं कि बच्चियों के वालिद अपनी अहलिया से ये चाहते हैं कि वो घर पर रहें और बच्चियों की देखभाल करें। इसमें कोई शक नहीं, ये बड़ी जायज ख्वाहिश है और ये बात दुरुस्त है कि कोई फर्द छोटे बच्चों की देखभाल इस तरह नहीं कर सकता जिस तरह कि उनकी मां कर सकती है। लेकिन अगर मां के लिए घर से बाहर जाना जरूरी है तो बच्चों की देखभाल का इंतजाम करना कोई मुश्किल काम नहीं। इस सूरत में जहां खातून अपने वालिदैन के साथ रहती हैं वहां उनकी बच्चियों की नानी ज्यादा बेहतर तवज्जो दे सकती हैं। अब चूंकि बच्चियां नर्सरी जा रही हैं इसलिए इस इंतजाम में भी कोई खराबी नजर नहीं आती। यकीनन बच्चियों के हक में यह ज्यादा मुफीद साबित होगा। नंबर 2, खास अहमियत के हामिल नुकात पर मैं जोर देना चाहता हूं। अव्वल यह कि जब एक शख्स किसी खानदान में शादी का पैगाम भेजता है तो अगर वो ये जानता है कि लड़की मुलाजमत करती है तो लड़की और उसके घर वाले ये फर्ज करने में हक बजानिब हैं कि शादी के बाद लड़की अपनी मुलाजमत हस्ब साबिक बरकरार रखेगी। शोहर को बाद में अपनी बात से फिरना नहीं चाहिए और न मनमाने तौर पर बीवी से यह कहना चाहिए कि वो इसकी मुलाजमत करने के हक में नहीं है। इस्लामी कानून में एक उसूल यह है कि मुआशरे में जो मारूफ तरीका है उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। अगर हम इस उसूल का इतलाक इस सवाल पर करें जो पूछा गया है तो हम समझते हैं कि शोहर शुरू से जानते थे कि उनकी अहलिया मुलाजमत करती हैं और जब उन्होंने शादी का पैगाम भेजा तो उन्होंने इस हकीकत को कबूल किया था और उन्होंने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया था कि वो कह सकते कि अब उनकी 2 बेटियां हैं जिन्हें मां की तवज्जो की जरूरत है। ये सच है, लेकिन अगर उनकी अहलिया बच्चों की मुनासिब देखभाल का इंतजाम करती रही हैं तो उन्हें इस सूरत हाल को कबूल कर लेना चाहिए। दूसरा नुक्ता खवातीन की तालीम और मुआशरे में उनके किरदार से मुताल्लक है। ये बात सबको मालूम है कि इस्लाम लड़के और लड़कियों दोनों की तालीम पर जोर देता है। एक इस्लामी मुआशरे में अगर वालिदैन अपने बच्चों की, खा वो लड़के हों या लड़कियां, तालीम पर तवज्जो नहीं देते तो अपनी इस कोताही के लिए वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जवाबदेह होंगे। दूसरी तरफ मुआशरे को चाहिए कि वो लड़कों और लड़कियों दोनों की तालीम के लिए तमाम सहूलतें और मौके फराहम करे ताकि हर मुमकिन तौर पर आला से आला तालीम हासिल हो सके। एक मुस्लिम मुआशरा हर शोबे में तरबियत याफ्ता अफराद पैदा कर सके और इसे किसी बैरूनी माहिर या महारत की जरूरत बाकी न रहे। इसका मतलब यह हुआ कि खवातीन को इस्लामी हुदूद में रहते हुए तालीम याफ्ता होना चाहिए। इनमें से चंद यूनिवर्सिटी की असनाद भी हासिल करें। यह कहने की जरूरत नहीं कि मुआशरा अपने वसाइल का बड़ा हिस्सा एक फर्द की तालीम पर सर्फ करता है। हमारी तालीम याफ्ता खवातीन को अपनी तालीम का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि उनके लिए मुनासिब हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक खातून को डॉक्टर बनाते हैं, वो निस्वानी अमराज के माहिर डॉक्टर बन जाती है, तब उनके शोहर उन्हें हुक्म देते हैं कि वो घर पर रहें तो न सिर्फ उन पर
सरफ होने वाला सरमाया जाय होगा, बल्कि हमने मुसलमान खवातीन को मर्द डॉक्टरों के पास भेजने का भी इंतजाम कर दिया। तो ये कहां की अक्लमंदी है? खवातीन की तालीम और उनके काम के बारे में ये नुकात मैंने आपके सामने पेश किए हैं। खुशकिस्मती से मुझे मौका मिला कि मैं इन पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दूं। मैं अपनी इस बहन से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी राय पर नजर सानी करें, वो अपने शरीके हयात के नुक्ता नजर को समझें और ये देखें क्या इन खातून की सोच और उनके खामन की सोच दोनों मियां बीवी के लिए बेहतर क्या है। वो अपनी तालीम का बेहतर इस्तेमाल करें। अगर वो गौर करें तो शायद उनको यह भी अंदाजा होगा कि उससे उनकी दोनों बेटियों को भी फायदा पहुंचेगा। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन झगड़ों से और ऐसी नाचाकियों से और इन बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सवाल और उसके तफसीली जवाब के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।